56. In this lecture, we will discuss about the concept of information memorandum, that is also like the prospectus, and then we will discuss further about the meetings and the resolutions. So let us just start our discussion with the concept of information memorandum. As in our previous lecture, we discussed about the kinds of the prospectus. Information memorandum is also one of the important document which is required by every public company to file before issuing any shares to the general public, or before just coming with any kind of IPO. It is very much required to have the information memorandum. When we talk about the information memorandum, it is a document that states द बिजनेस प्लान ऑफ द कंपनी. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कंपनी जो शेयर्स इनवाइट कर रही है या जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स इनवाइट कर रही है, कंपनी उस पैसे को किस बिजनेस प्लान में लगाएगी. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. कहते हैं जो भी पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करने जाती है उसको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पब्लिक को पहले से देना पड़ता है. इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दोनों की एक ही जैसी जिम्मेदारी है. So it is very much required by any company to file before issue of securities prospectus as well as the information memorandum. Now the next important topic of the Companies Act is the meetings. There is an old proverb that two heads are always better than one. What it says, कहते हैं whenever you all know that company is an artificial person, it is not like any natural person, so its all decisions are taken by the representatives of the shareholders. They are called as the board of the directors. So time to time it is very much required that they should meet and they should just decide about the various important policies of the company. So that's why meetings are conducted in the companies. There can be various kinds of the meetings. It can be the meetings of the shareholders, meetings of the directors, meetings of the creditors. When we talk about the shareholder meeting, it can be the general meeting and it can be the class meeting. General meeting again can be called as the statutory, AGM, extraordinary general meeting. डायरेक्टर्स की दो मीटिंग्स हो सकती हैं, बोर्ड मीटिंग्स एंड कमेटी मीटिंग्स. क्रेडिटर्स में दो मीटिंग्स हो सकती हैं, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग या फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द स्टैच्यूटरी मीटिंग. जब भी कोई पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, जब भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यू कैन से विद इन 1 month ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड विद इन 6 months, 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी को एक स्टैच्यूटरी मीटिंग कॉल कर लेनी चाहिए. और उस मीटिंग के लिए कंपनी को 21 दिन पहले का नोटिस सारे शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है. इट इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर एनी पब्लिक कंपनी टू होल्ड दिस मीटिंग वंस इट रिसीव्स द certificate of commencement of business. The time, date and place of the meeting must be mentioned into the notice. Notice जो होता है 21 दिन का, जिस दिन वो notice issue किया गया है, that date will not be calculated and the day of the meeting, it will not be calculated in the time of the 21 days. The next kind of the meeting named as annual general meeting. हर कंपनी को साल में एक बार एक जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है. उसमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, उनको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में बताया जाता है. हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना जरूरी है. कैलेंडर ईयर मींस 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. देन कम्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद जो पहली एजीएम होती है उसके लिए उसको 18 महीने का समय दिया जाता है. इट कैन होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग विद इन 18 months. और एक और कंसेशन है कि पहली एजीएम के बाद नेक्स्ट कंसिक्यूटिव ईयर में एजीएम नहीं करनी पड़ती है. नेक्स्ट कंसिक्यूटिव ईयर में एक कंसेशन दिया जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट एजीएम. नाउ कम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. कई बार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जिनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है अगली एजीएम तक. तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं, इसमें कोई इमरजेंसी आ गई है तो कि एक मीटिंग कॉल की जाए. सो दीज मीटिंग्स आर पॉसिबल एंड दे आर कॉल्ड एज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स. कहते हैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कॉल कर सकते हैं, या जिन लोगों को जरूरत पड़ रही है वो लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉल कर सकती है. देन कम्स क्लास मीटिंग्स. जब कंपनी में शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो केवल एक ही क्लास के नहीं होते हैं, बहुत सारे तरीके के शेयर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट्स पर आईपीओज निकाले जा सकते हैं, इश्यूज निकाले जा सकते हैं. तो जब डिफरेंट डिफरेंट क्लास के शेयर्स होते हैं तो दे कैन बी कॉल्ड एज द वेरियस काइंड्स ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द शेयर्स. एंड जब किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स की मीटिंग कॉल की जाए दैट कैन बी कॉल्ड एज द क्लास मीटिंग. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लिमिटेड. ए लिमिटेड नाम की कंपनी है. उन्होंने मार्च के महीने में 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 का आईपीओ निकाला था और फिर नेक्स्ट ईयर
उन्होंने मई के महीने में 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15 निकाले थे. सो दे आर द वेरियस क्लासेस. तो जब इस तरीके से और भी हो सकता है उस कंपनी ने काफ़ी सारे आईपीओज निकाले हों, अलग अलग डेट्स पे निकाले हों, अलग अलग तरीके से निकाले हों, तो दे कैन बी कॉल्ड एज द वेरियस क्लासेस ऑफ द शेयर्स. और जब इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स की मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल की जाती है, दे कैन बी कॉल्ड एज द क्लास मीटिंग्स. जब किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के शेयर्स के जो राइट्स होते हैं उसमें कोई वेरिएशन किया जाता है, सो देर इज अ नीड ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन टू दिस केस. देन कम्स मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स. डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड दी जाती है. दे आर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. अगर वो चाहें तो वो भी अपनी कोई मीटिंग कॉल कर सकते हैं. एंड यहाँ पर भी द डिसीजन अराइव्ड एट सच मीटिंग्स विद द रिक्विजिट मेजोरिटी आर वैलिड एंड बाइंडिंग अपॉन द माइनॉरिटी. मेजोरिटी जो भी लेती है वही डिसीजन माना जाता है. देन कम्स मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स. साफ तौर पे कहा गया है कि जो क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है वो कंपनी की मीटिंग तो नहीं होती है. इसको सेक्शन 391 से लेकर 393 में बताया गया है. अगर कंपनी के क्रेडिटर्स कोई अरेंजमेंट करना चाहते हैं और वो मीटिंग कॉल करते हैं तो दे कैन होल्ड दैट काइंड ऑफ अ मीटिंग. ऐसी मीटिंग वो कर सकते हैं. अगर उन्होंने कोई अरेंजमेंट किया है, स्कीम बनाई है अरेंजमेंट की, वो अपना पैसा वापस चाह रहे हैं कंपनी से, और कोई उन्होंने अरेंजमेंट की बात की है, कोई उन्होंने प्लान बताया है, इन दैट केस अगर जो डेब्ट्स की 3/4 वैल्यू तक के लोगों की वोटिंग उस अरेंजमेंट पर आ जाती है तो कोर्ट भी उस ऑर्डर को सैंक्शन कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स. देन कम मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स वो होते हैं, दे आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी. ये सारा का सारा नॉर्मल फंक्शनिंग डे टू डे अफेयर्स देखते हैं कंपनी के, तो टाइम टू टाइम इनका मिलना और कंपनी की पॉलिसीज और डिसीजंस पर बात करना जरूरी होता है. तो कहते हैं कि जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं दे शुड बी कंडक्टेड एट द रेगुलर इंटरवल्स, आइदर वंस इन अ फोर्टनाइट और वंस इन अ मंथ. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स. कहते हैं एक वैलिड मीटिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. पहली बात, प्रॉपर अथॉरिटी. अगर प्रॉपर अथॉरिटी की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कंडक्ट अ मीटिंग. मीटिंग होने से पहले 21 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है. क्योरम, मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने जरूरी होते हैं. अगर वो आपकी प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग कम से कम होने चाहिए, और अगर वो आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 5 मेंबर्स मस्ट बी देयर. चेयरमैन ऑफ मीटिंग. जब मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो उस समय सबसे एक सुप्रीम पर्सन को चुना जाता है एज अ चेयरमैन. ये चेयरमैन ही होता है जो पूरी की पूरी मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंडक्ट कराते हैं मीटिंग को. वोटिंग्स की काउंटिंग करनी, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सब चेयरमैन का ही काम होता है. कहते हैं द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन. लेकिन अगर आर्टिकल्स में नहीं बताया गया हो तो जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने में से ही किसी एक को चेयरमैन चुन सकते हैं. देन मिनट्स ऑफ द मीटिंग. जब कोई मीटिंग कॉल की जाती है तो उस मीटिंग का रिकॉर्ड बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. और जब उस रिकॉर्ड्स को बनाया जाता है दे आर कॉल्ड एज द मिनट्स. और मिनट्स की एक बुक होती है. कहते हैं जब भी कोई मीटिंग होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग जो होती है वो मिनट बुक में हो जानी चाहिए. हर मिनट बुक के पेज पर चेयरमैन के साइन होने चाहिए. जो भी मिनट्स बनाई गई हैं उसमें फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए. जो भी अपॉइंटमेंट किया गया है ऑफिसर्स का, अगर उस मीटिंग के दौरान उसकी प्रॉपर सारी की सारी डिटेल्स उस मिनट्स में होनी चाहिए. चेयरमैन को अगर ऐसा लगता है कि कुछ मीटिंग में ऐसा हुआ था जो कि कंपनी की रेपुटेशन के लिए डेट्रीमेंटल है, अच्छा नहीं है, या डिफेमेटरी है, किसी पर्सन को एम्बैरेसिंग फील कराया गया था, तो ऐसी चीजें चेयरमैन चाहें तो वो मिनट से एक्सक्लूड कर सकते हैं. मिनट्स बुक्स को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है एंड दे आर ओपन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू द इंस्पेक्शन. वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होती हैं विदाउट एनी चार्ज. कम से कम 2 घंटे के लिए मिनट बुक्स को ओपन रखना चाहिए, सो दैट इफ एनीबडी वांट टू सी the minutes they can see it, they can check it. So this is about the minutes of the meeting. The next important like concept is the share and the share capital. Shares जो होते हैं कंपनी के, they are the like share in the share capital of a company and include stock. लेकिन शेयर और स्टॉक में डिफरेंस है. शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपए का एक शेयर, लेकिन स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है. शेयर के डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी में 12 लाख 1 से लेकर 12 लाख 10 तक शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, लेकिन स्टॉक का कोई नंबर नहीं होता. शेयर्स हमेशा पब्लिक को इशू किए जाते हैं. कंपनी स्टॉक किसी को इशू नहीं कर सकती. शेयर्स फुली पेड अप या पार्टली पेड अप हो सकते हैं. स्टॉक कभी भी पार्टली पेड अप नहीं हो सकता. स्टॉक का मतलब है कि कंपनी का स्टॉक, इतना स्टॉक कंपनी ने आपको बेच दिया. स्टॉक फ्रैक्शंस में हो सकता है लेकिन शेयर कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं. देन कम्स द टाइप ऑफ द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल बहुत प्रकार की होती है, जिसमें पहली आती है ऑथराइज शेयर कैपिटल.
ऑथराइज शेयर कैपिटल आपकी वो कैपिटल है जिसके लिए रजिस्टर कंपनी ने अपने आप को किया हो कि हम इतने रुपए तक का बिजनेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी हैज रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद 5 करोड़ रुपीज, सो दिस इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल. ऑथराइज शेयर कैपिटल को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इशूड शेयर्स एंड अनइशूड शेयर्स. अगर कंपनी ने 5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए तक का आईपीओ निकाल दिया है, तो 1 करोड़ इज द इशूड शेयर्स एंड द रेस्ट ऑफ द 4 करोड़ कैपिटल इज द अनइशूड शेयर्स. जो इशूड शेयर कैपिटल होती है उसको भी दो भागों में बांटा गया है. अगर उस 1 करोड़ रुपए की जो इशूड शेयर कैपिटल है उसमें से कुछ शेयर्स कंपनी खुद से ही खरीद लेती है, दे आर कॉल्ड एज द ट्रेजरी शेयर्स. लेकिन जो बाकी के शेयर्स हैं अगर वो जनता ने खरीदे हैं या बाहर के लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द शेयर्स आउटस्टैंडिंग. तो क्या बना यहाँ से, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होती है उसमें दो प्रकार की कैपिटल हो सकती हैं, इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल जो होती है उसको फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड ट्रेजरी शेयर्स. शेयर्स इशूड इक्वल्स टू शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस ट्रेजरी शेयर्स. शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बाहर के लोगों ने खरीदा हो, ट्रेजरी शेयर्स मतलब जो कंपनी ने खुद ही अपने शेयर्स खरीद लिए हो. सब्सक्राइब कैपिटल, जब कंपनी कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है तो उसमें जितने लोग उसके लिए सब्सक्राइब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 शेयर्स के लिए एक इन्विटेशन दिया है और उसमें से 9,000 एप्लीकेशन आई है, सो 9,000 इज द सब्सक्रिप्शन. यू कैन से दैट 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, आपने 1 लाख कहा था और 9,000 एप्लीकेशन आई है, 90,000 रुपीज के लिए एप्लीकेशन आ गई है, दैट मीन्स अ सब्सक्राइब कैपिटल. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कंपनी जब कोई कैपिटल इशू करती है तो सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती है, कंपनी थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांगती है. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी ने 2 रुपए जनवरी में मांग लिए, 2 रुपए मार्च में मांगे, 2 रुपए मई में मांगे, तो अभी तक कंपनी 6 रुपए मांगे हैं, तो दैट मीन्स इट इज अ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल, जितना पैसा अभी तक शेयर होल्डर्स जिन्होंने भी कंपनी में अप्लाई किया था और शेयर्स लिए हैं, जितना पैसा अभी तक वो कंपनी को दे चुके हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज द पेड अप शेयर कैपिटल. कंपनी में दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. लाइक प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है. प्रेफरेंस शेयर्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कॉम्युलेटिव और नॉन कॉम्युलेटिव, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स एज द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर का मतलब होता है अगर आपने कंपनी के कोई शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और आप किसी और को उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यू कैन डू द सेम. तो आपको इसके लिए एक पूरी लीगल प्रोसीजर करना होगा. आप अपने ब्रोकर की सहायता से अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं. आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी और जब आप ट्रांसफर करेंगे रजिस्टर को तो आपसे चार्जेस भी लिए जाएंगे. लेकिन ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है व्हेन द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. मान लीजिए कोई बंदे ने शेयर्स होल्ड करे हुए थे और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो भी उसका लीगल हायर है उसके शेयर्स उसको ट्रांसफर हो जाएंगे. ट्रांसमिशन में बस एक एविडेंस देना पड़ता है कि ऐसा हो गया है, शेयर्स लाइक इसलिए ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं. ट्रांसमिशन में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है और जब ट्रांसमिशन को रजिस्टर किया जाता है तो कंपनी भी कोई चार्जेस नहीं लेती है. सो दीज ऑल आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. नाउ कम्स द मेंबरशिप. व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स, जिन लोगों ने मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया है, अपना नाम दिया है, दे आर कॉल्ड एज द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. या फिर जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और एग्री कर गए हैं, राइटिंग में अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखवाया है, दे कैन बी कॉल्ड एज द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन. सेक्शन 209A में बताया है कि जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं या जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं कंपनी की, दे आर ऑलवेज ओपन टू द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू द रजिस्ट्रार. रजिस्टर चाहे तो वो भी चेक कर सकता है, या अगर गवर्नमेंट कोई ऑफिसर चेक करना चाहता है तो वो भी कर सकता है अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है तो. Now the types of the resolutions. Resolutions can be of three kinds: ordinary, special. Resolutions requiring special notice. Ordinary resolutions वो होते हैं जो कि जनरल मीटिंग में पास किए जाते हैं. अगर 51% की वोटिंग फेवर में हो जाए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है. स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशंस होते हैं जिसमें एक स्पेशल नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है कि ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी. जब 75% लोगों की वोट अगर उस प्रस्ताव के फेवर में पड़े, then it can be called as a special resolution. 3 times the number of the vote should be in favor as against the cast. Like whatever you want to just pass, there must be 75% voting in the favor of that particular proposal, then only it can be passed.
तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ। रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये रेजोल्यूशंस बिल्कुल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की तरह होते हैं, बस इसमें केवल ये डिफरेंस है कि जो मूवर है रेजोल्यूशन का उसको एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है कंपनी को 14 डेज का, और फिर कंपनी ये जो नोटिस होती है आगे मेंबर्स को देती है कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास होने वाला है। कहते हैं अगर कंपनी के लिए प्रैक्टिकेबल ना हो तो कम से कम कंपनी को 7 दिन का नोटिस तो दे ही देना चाहिए, चाहे कंपनी इसके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाले या फिर किसी और तरीके से इन्फॉर्म करे मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को, लेकिन कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा। सो